Hello everyone, a very good morning to all of you. First of all, I would like to warmly welcome you all to this brand new session. As you know, we are discussing class 10th history, and in our last session we discussed the meaning of liberal nationalism. Last class we discussed करते, and you know that the idea, it is one of the most important idea which was emerged during the period of mid 18th century that shaped the 19th century political landscape, and हमें पूरा details ए विषय रे हमें last class रे discuss करते. Okay, so today we will move ahead from 1815 when a new conservative order was established in Europe, and we will explore how the conservative tried to restore monarchies and express the liberal ideas that had begun spreading. But before we dive into it, I once again welcome you all to this Swedeep Academy. If you have not already, then make sure to like this video, subscribe to this channel and hit the bell icon so you never miss any update. So let's begin today's discussion, that is a new conservatism after 1815. So last class we discussed करथिले, that is in 1815. Okay, 1815 रे कौन हेतला ना नेपोलियन बोनापार्ट को जो शासन काल थिला तार अंत घटथिला. ओके, बैटल ऑफ वाटरलू रे डिफीट करा जाइथला काको ना नेपोलियन बोनापार्ट. Okay, and from that onwards European governments were driven by a spirit of conservatism. Okay, what it means with discussion you can easily understand. Okay, after 1815 काहेकि बोल लिखा है इसे after 1815 काहेकि European governments conservatism spirit द्वारा guided हेतले बोली काहेकि को है. Okay, with discussion you will understand. Okay, so let's continue. So first let's try to understand what do you mean by conservatives. Okay, class 9th concept Russian revolution first ही हमें डिस्कस करते हैं liberals conservatives ए concept को. So what do you mean by conservatives or what do you mean by conservatism? Okay, conservatism. So it is a conservatism means it is a conservatives ये जो गोटे पर्सन. ओके, conservatism it's a idea. So it's a political philosophy that stress the importance of tradition. Okay, then we can say established institutions and prefer gradual development to quick change, and also old customs, old theory, old tradition रे ये belief रखें. Okay, so what it means again I am telling you. Conservatism माने कौन? Very simple. जे conservatives believe करंती बा conservatism ए idea रे विश्वास रखंती जे जो established बा traditional institution पूर्वरु जो व्यवस्था थिला, पूर्वरु जो पुराना कालिया व्यवस्था थिला, जो monarchy, जो भली government system, जो भली society, तो से भली state institution बा established institution को हमें कंजर्व करवा दरकार, से भली सोसाइटी को आमे कंजर्व करवा दरकार. जमते एग्जांपल लिखाई छि मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की. ओके, देन प्रॉपर्टी कथा भी हमें कहि परिबा, फैमिली, ए सब को प्रिजर्व करवा दरकार. मींस ओल्ड सिस्टम रे जो माने बिलीफ रखथले बा ओल्ड बा में पढ़थिबा 1789 पूर्व समय को जो कहा होतला ओल्ड रेजिम. ओके, आई थिंक मन थि ओल्ड रेजिम. सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ओल्ड रेजिम सोसाइटी जहा थिला, गवर्नमेंट जहा थिला, जो भी सिस्टम थिला, से सिस्टम रे जो माने बिलीफ रखुतले वी कैन से दे वर द कंजर्वेटिव्स, एंड से पॉलिटिकल फिलोसफी को ही कहा जाउतला कंजर्वेटिव्स. ओके, सो आफ्टर 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट एभली गोटे आइडियाज बा एभली गोटे पॉलिटिकल फिलोसफी द्वारा ड्रिवेन होतला. ओके, बट रिमेंबर most conservatives however did not propose a return to the society of the pre-revolutionary days.
Rather, they realized from the change initiated by the Napoleon that modernization could in fact strengthen the traditional institution like the monarchy. Okay, but a concept को जिबा पूर्वरु मु टिके मु पास्ट को जिबी टिके अदर किसी कॉन्सेप्ट मु कहि देबी सो दैट ए कॉन्सेप्ट इजीली बुझी परिबो. ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपन. ओके, मु ए स्लाइड रे एक्सप्लेन कर दूची. एक्चुअली स्लाइड से तो किछि लेना देना नहीं, मते लेखिया पय सुविधा हो बोले मु स्लाइड टू ओपन कली. ओके, सो 1815 रे कोन हेछि ना नेपोलियन. ओके, नेपोलियन डिफीट हेचंती. ओके, बैटल ऑफ वाटरलू रे. एंड नेपोलियन को डिफीट को माने करचंती ना यूरोप रो किछटा मोनार्क बा में कहि परिबा यूरोप रो से समय थिबा जो किछटा पावरफुल स्टेट, जो पावरफुल स्टेट थिले से पावरफुल स्टेट माने मिसी की. ओके, कंबाइनली से पावरफुल यूरोप रो पावरफुल स्टेट्स माने बा यूरोप रो पावरफुल स्टेट रो मोनार्क माने कंबाइनली नेपोलियन बोनापार्ट को डिफीट करथिले 1815 रे. काहेकि डिफीट कराइतला ना बिकॉज यू नो दैट नेपोलियन चाहूतले कि पूरा होल यूरोप उपरे कौन करिवे ना राज करिवे. तो एमाने चाहूतले नेपोलियन बोनापार्ट को डिफीट करिवा. एंड आमे पूर्वरु जो भली आमे जो एरिया रे शासन करथले ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ओल्ड एसएम और बिफोर द रिवोल्यूशनरी एरा आमे से होली शासन करिवा. तो नेपोलियन को स्प्रेड हवा को देबा नाही, नेपोलियन को पूरा यूरोप ऊपर शासन करिवा को देबा नाही. तो 1815 रे कौन करा गला ना बैटल ऑफ वाटरलू रे नेपोलियन को डिफीट कले. को माने ना यूरोप रो मेजर पावर्स. ओके, यूरोप रो पावरफुल स्टेट्स, पावरफुल मोनार्क. ओके, एंड आफ्टर दैट जेतबे नेपोलियन 1815 रे कौन हेले ना डिफीट हेले. आफ्टर दैट व्हाट हैपेन ना ए जो पावरफुल स्टेट्स थिले, ए जो पावरफुल यूरोपियन मोनार्क्स थिले से माने चाहिए से ओल्ड ऑर्डर. ओके, से ओल्ड ऑर्डर बा में कहि परिबा जो ओल्ड सिस्टम थिला से सिस्टम को कौन करिवे पुनः स्थापन करिवे. ओके, सेथि पई एठी लिखा है फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म. तो कंजर्वेटिव्स एठी को माने थिले वी कैन से मोनार्क्स. ओके, तो राजा माने थिले जो मोनार्क बा जो पुराना कालिया इंस्टीट्यूशन थिला हायरिची थिला बा पूर्वरु जो माने शासन करथुले से माने पूर्व भली ही पुनर्बार शासन व्यवस्था एस्टाब्लिश करथिले आफ्टर 1815. एंड दैट्स व्हाई इहली लिखा जायछि दैट इज यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म. ओके, सो यू अंडरस्टूड व्हाट डू मीन बाय कंजर्वेटिज्म. बट कहा जाउछि कोन आफ्टर 1815. ओके, आफ्टर 1815 जतेबेले कंजर्वेटिव्स माने गोटे कंजर्वेटिव ऑर्डर बा बिफोर 1789 जो सिस्टम थिला ताकू जो री इंट्रोड्यूस कले ड्यूरिंग दैट टाइम. ओके, से माने ए जिनस रियलाइज करथिले कोन कि नेपोलियन बोनापार्ट को समय रे इनिशिएट करा जायथिबा रिफॉर्म गुडी को. ओके, तो से मॉडर्नाइजेशन बा से जो मॉडर्न बा से जो न्यू रिफॉर्म्स को जदी से माने किछि किछि अडॉप्ट करतेबे देन व्हाट विल हैपन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन बा मोनार्की बा मैं कहि पारे जो ओल्ड सिस्टम आहुरी कोन हे परियो ना स्ट्रेंथन हे परियो. इट मीन्स व्हाट ना कंजर्वेटिव्स माने संपूर्ण. ओके, दे डिड नॉट प्रपोज ए रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज. व्हाट इट मीन्स ना प्री रिवोल्यूशनरी डेज बा 1789 पूर्व रो जो सोसाइटी थिला संपूर्ण भावे से सोसाइटी को से माने रिटर्न हेबा पई चाहू नथिले. ओके, सो मोस्ट कंजर्वेटिव्स प्रायतः कंजर्वेटिव से माने यह प्रपोज करू नथिले बा से माने एथरे विश्वास रखु नथिले जे प्री रिवोल्यूशनरी सोसाइटी को संपूर्ण भावे रिटर्न करिबा. एंड दे रियलाइज कि नेपोलियन को समय जो इनिशिएट कराइतला किछटा चेंजेस से सब चेंजेस से मॉडर्नाइजेशन को जदि किछि मात्रा में अडॉप्ट करूचे देन आमर ए ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन दैट इज मोनार्की आहुरी कोन हे परिबो स्ट्रेंथन हे परिबो. इट मीन्स व्हाट इट हम यह बुझिले जे कंजर्वेटिव्स माने 1815 ऑनवर्ड्स ओल्ड सिस्टम को तो अडॉप्ट कले बट ओल्ड सिस्टम को अडॉप्ट करने सह नेपोलियन को किछि एभली रिफॉर्म्स को भी सेमाने आपणी थिले जहा द्वारा ए कंजर्वेटिव ऑर्डर कोन हे परिबो आहुरी स्ट्रेंथन हे परिबो. एंड दैट्स व्हाई को कहा गला ए न्यू कंजर्वेटिज्म.
ओके न्यू वर्ड यूज से ओके दैट्स वाई को कहा गला ए न्यू कंजर्वेटिज्म ऑर्डर और ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 ओके आई होप बुझी पार्थिबो जदि भी किसी कंफ्यूज रहला देन टिके बैक कर ओके पुणी थरे सुनिया पे ट्राई कर एंड रिलेट कर आई होप यू विल अंडरस्टैंड मु रिपीट कले भल लागिबनी ओके पुणी थरे देखिनबो आई थिंक बुझी परिबो सो इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रांग व्हाट इट कुड मेक स्टेट पावर मीन्स जदि आमे ट्रेडिशनल सिस्टम को अडॉप्ट करबा सह जदि किछि मॉडर्निटी को बा जो रिफॉर्म्स को नेपोलियन बोनापार्ट इंट्रोड्यूस करथिले जदि ताको आमे कंसीडर करूचे देन स्टेट पावर कैन बी मोर इफेक्टिव ओके ओके इट कुड बी मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रांग सो कौन कौन एग्जांपल थिला बा नेपोलियन को को रिफॉर्म्स को से एक्सेप्ट करथिले ना ए मॉडर्न आर्मी ओके ए एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी ए डायनामिक इकोनॉमी ओके रिमेंबर जो यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटोरी गठन कराइथिला सेत्रि से माने विश्वास रखथिले दैट इज लेस करेंसी ओके यूनिफॉर्म मेजर यूनिफॉर्म यूनिट्स ये सब को से माने अडॉप्ट करथिले दैट इज एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म सिस्टम को भी से माने एबोलिश करथिले सर्फडम को भी एबोलिश करथिले तो एभली किछि मॉडर्निटी को भी एक्सेप्ट करबा सह गोटे ओल्ड सिस्टम को रीइंट्रोड्यूस कराइथिला इन 1815 बाय द major power of the Europe after the defeat of Napoleon in 1815 Battle of Waterloo. Okay, so that's why after 1815 we can say a new conservative order was introduced. Okay, a new conservatism system start haba lagila after 1815. So a new conservatism after 1815 Treaty of Vienna. Let's try to understand. Continue kariya set topic. In 1815 I have already told you representative of the European power okay किछि मेजर यूरोपियन पावर जमती ब्रिटेन रशिया प्रुसिया ओके प्रुसिया मीन्स जर्मनी ओके प्रुसिया ऑस्ट्रिया हु आर कलेक्टिवली जो माने कि मिलीमिशी नेपोलियन को डिफीट करथिले ओके एट द बैटल ऑफ वाटरलू एंड विथ दैट ओके वियना रे गोटे सेटलमेंट करा जायथला ओके सेटलमेंट मीन्स वी कैन से वन टाइप ऑफ अरेंजमेंट काहेकि ना ए सबु मेजर स्टेट्स मानन को डिफीट करी नेपोलियन बोनापार्ट कौन करथिले निजर टेरिटोरी सहित मिसई देथिले तो गोटे सेटलमेंट ड्र करागला गोटे अरेंजमेंट कर दिया गला कि बिफोर 1789 जो राजा माने जो एरिया रे शासन करथुले से माने से टेरिटोरी ऊपर पुनर्बार शासन करिवे एंड अन्य किछि किछि जहाँ भी अरेंजमेंट करा जिवो से विषय डिस्कशन करिया पय वियना रे गोटे मीटिंग अरेंज करागला एंड दैट कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैट्रिन्स ओके ऑस्ट्रेलिया जे चांसलर थे ड्यूक मैट्रिन्स सी ए कांग्रेस टी को सी मीटिंग टी को कौन करथिले ना होस्ट करथिले द डेलीगेट्स ड्यू ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना ओके तो से वियना रे जो गोटे चुक्ति स्वाक्षर कराइतला ताको ही कहा जाउतला ट्रीटी ऑफ वियना 1815 एंड व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रीटी एटीटर मेन ऑब्जेक्टिव कौन थिला ना अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट in Europe during the Napoleonic War. So Napoleon को पीरियड रे Napoleonic War अंको समय थिला कोटु ना 1799 to 1815 1799 to 1815 भितर Napoleonic को रेजिम समय रे जहाँ भी किछि चेंजेस अना जाइथिला प्रायतः ओके सबु नो को मैंने किछि मॉडर्न रिफॉर्म्स को से एक्सेप्ट करथिले प्रायतः चेंजेस को अंडू करिबा ओके पुणी थरे 1789 पूर्ववर्ती अवस्था को रीएस्टाब्लिश करबा दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना 1815 okay again I am telling you what was the main objective of treaty of Vienna main objective was to undo the most of the changes that had come about in Europe during the period of Napoleonic War so let's see कौन सब changes अना जायतला बा कौन सेटलमेंट करा जायतला at the treaty of Vienna first one बर्बन डायनास्टी यू नो दैट बर्बन डायनास्टी कहाँ पर शासन करतला फ्रांस ऊपर शासन करतला एंड विथ फ्रेंच रिवोल्यूशन बर्बन डायनास्टी को कौन कराइतला डिपोज कराइतला हटे दिया जाइतला फ्रांस रो तो पुनर्बार कौन करागला ना फ्रांस को रेस्टोर करागला सॉरी बर्बन डायनास्टी को पुणी थरे रेस्टोर कर दिया गला बा बर्बन डायनास्टी को पुणी थरे फ्रांस ऊपर शासन करिया पय एलाउ कर दिया गला आउ कौन करागला ना फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटोरीज that are annexed under the Napoleon Bonaparte okay France Napoleon Bonaparte को अंडर रे तांको गाइडेंस रे जो डिफरेंट टेरिटोरी को एनेक्स करथिला
से सबू टेरिटोरी को फ्रांस कौन करदेला रिटर्न करदेला रेस्पेक्टिव स्टेट्स मान को ओके सो फर्स्ट पॉइंट वी कैन से बर्बन डायनेस्टी व्हिच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज restored to power again and second France lost the territories it had annexed under the Napoleon Bonaparte second okay you know that जेमती इंडिया रे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल विषय तुम जानी आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इंडिया रे बा जदि आमे कहबा स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म जदि इंडिया रे कोडी इमर्ज होतला बा को स्टेट जदि अधिका स्प्रेड होतला सी थिला बेंगल एंड दैट्स व्हाई जानी सुनी 1905 रे कोन करा गला बेंगल को डिवाइड कर दिया गला बंग डिवीजन जहा को कहचे दैट इज वेस्ट बेंगल एंड ईस्ट बेंगल हे गला जहा को कि वर्तमान आमे कहचे कोन ना बांग्लादेश ठीक से होली आर उद्देश्य कौन था बंग को डिवाइड करने पछर उद्देश्य कौन था ब्रिटिश कहीं 1905 रे बंग को डिवाइड करते मेन रीजन वाज ना टू व्हाट ना टू डिसमेंटल ओके पूरा बंग को डिसमेंटल करदबा बंग को डिवाइड करदबा ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डाइवर्सिटीज सो दैट लोक मान को भितर गोटे यूनिटी रहबो नाही ओके सो जस्ट लाइक दैट ओके यूरोप कथा जदि कहबा यू नो दैट फ्रांस वाज द स्टेट जोठू ही पूरा यूरोप रे फ्रांस रु ही रिवोल्यूशनरी आइडिया चारियाडे कौन होता ना स्प्रेड होता दैट्स व्हाई कौन करा गला ना ए सीरीज ऑफ स्टेट्स वेर सेट ऑफ ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपांशन इन फ्यूचर गोटे भय थिला जे फ्रांस इन फ्यूचर पुणी थे एक्सपांड करिवो कि पुणी थे तार टेरिटोरीज को जस्ट लाइक नेपोलियन को अंडर जेमती सी तार टेरिटोरियल बाउंड्रीज को एक्सपांड करथिला काळे आउथरे से भली फ्यूचर करिवो कि फ्रेंच रू पुणी थे नेशनल आइडिया स्प्रेड हम कि ए भय रखी फ्रांस रो बाउंड्रीज चारिपटे जो छोट छोट स्टेट्स गुड़िक थे ताकू बड़ स्टेट सहित कौन कर दिया गला जानी शुणी मिसई दिया गला सो दैट फ्रांस साहस करबनी फ्यूचर रे तार निज टेरिटोरी को कौन करिया पे ना एक्सपांड करिया पे ओके किछि एग्जांपल देखिबा दैट इज बेल्जियम वाज एडेड विथ द नेदरलैंड ओके नेदरलैंड गोटे मेजर पावर थिला बेल्जियम को नेदरलैंड से ऐड कर दिया गला ओके देन गेनो वाज एडेड टू द पिडमोंट ऑफ साउथ गेनो को कौन कर दिया गला ना पिडमोंट इन द साउथ सहित कौन कर दिया गला अटैच कर दिया गला देन नेक्स्ट आउ कौन डिसाइड कराइतला एट द ट्रीटी ऑफ वियना Prussia was given important new territories on its western frontier while Austria was given control over the Italy. Okay, जो माने जो Austria was given control over northern Italy. Northern Italy रे किछि रीजन ऊपर पूर्व Austria शासन करतला दैट्स व्हाई Austria को भी अलाउ कर दिया गला पुनर्बार से भली शासन करिया पय. Prussia was given new territories on its western frontier. Okay, German speaking principalities को नेकी German speaking principalities को नेकी जो 39 states को नेकी फॉर्मेशन कराइतला जोल्वेरेन. ओके सेथिरे किछि छेड़खानी करा गला नाही ओके लेफ्ट अनटच्ड काहे कि ना प्रायतः स्टेट्स जर्मन को ही बिलोंग्स करथला. ओके द नेक्स्ट इन द ईस्ट Russia was given some part of Poland while Prussia was given a portion of Saxony. ओके प्रुसिया एंड रशिया भितरे किछि इश्यूज थिला प्रुसिया रे रुसिया रे किछि स्टेट को नै कि बा किछि जियोग्राफिकल टेरिटोरी को नै कि इश्यूज थिला से सब भी रिजॉल्व कर दिया गला. रशिया वाज गिवन सम पार्ट ऑफ पोलैंड प्रुसिया वाज गिवन सम पार्ट ऑफ सैक्सनी. सो इट मीन्स यू कैन सी ए एग्जांपल मानक देखुथबा केवल जियोग्राफिकल बाउंड्रीज रे ही बहुत किछि चेंज कराइछि. कोन चेंज कराइछि ना 1789 पूर्व अगेन बारंबार कहूछि 1789 पूर्व जो मेजर पावर जो एरिया रे शासन करथले से सब एरिया को से राजा मानन को कोन कर देगला रिटर्न कर देगला. दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना दैट इज to undo most of the changes that had come about during the period of Napoleon Bonaparte. So again same thing lekha hai what was the main objective to restore the monarchy को पुनर्बार establish करिबा to restore the conservative order to restore the monarchy okay that had been overthrown by the Napoleon and create a new conservative order in Europe. नेपोलियन को द्वारा जो मोनार्चिस्ट मानन को ओवरथ्रो करा जायतिला से मानन को पुनर्बार पुनर्स्थापन करिबा to restore the monarchy. That was the main objective of Treaty of Vienna. So I hope now you can understood. Okay, एबे तमे बुझी पारथिबो जे काहे कि एवढी लिखाइछि a new conservatism after 1815. Okay, so आमे वर्तमान हमर डिस्कशन केते दूर गला आमे फास्ट डिस्कस कले 1789 को आमे रेफरेंस नबा. ओके 1789 प्रायर हिस्ट्री आमे डिस्कस कले. ओके
एंड आफ्टर 1789 अप टू 1815 सिचुएशन कौन थी आम डिस्कस कले एंड आज आम डिस्कस कले 1815 ऑनवर्ड्स 1815 ऑनवर्ड्स कौन है ना मोनार्की ओके पुणी थरे कौन है ना री एस्टाब्लिश जहाँ को आम कहीपर न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर ओके न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर सो आई होप ओके टाइमलाइन रो गोटे आइडिया आसो आम स्टोरी केमती चलती ओके नाउ लेट्स सी ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 18 कंजर्वेटिव रेजिम सेट ऑफ इन 1815 वेर ऑटोक्रेटिक एंड यू नो दैट ओके मोनार्की ये हूँ गोटे कौन ना ऑटोक्रेटिक शासन ओके ये डेमोक्रेसी तो नुह तो 1815 रे जो न्यू रेजिम टी सेट ऑफ होता इन यूरोप कंजर्वेटिव रेजिम दैट वाज कंप्लीटली ऑटोक्रेटिक ओके एंड यू नो दैट ऑटोक्रेटिक माने से क्रिटिसिज्म को टॉलरेट करेंगे डिसेंट को से टॉलरेट करेंगे एंड एवरी टाइप ऑफ दैट एक्टिविटीज जी कि तांकर लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट उपरे जे क्वेश्चन राइज करिबा ता उपरे से माने कोन करिवे से एक्टिविटीज को से माने कोन करिवे ना कर्प करिवे तो सेम जिंस हला जी भी गवर्नमेंट रो लेजिटिमेसी उपरे क्वेश्चन राइज करतला बा जी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करतला बा जी भी गवर्नमेंट रो शासन रे संतुष्ट नथिला किछि भी जदि तुम वॉइस रेज कल ताकू कौन कर दिया होता दबे दिया जाता ओके यू नो दैट ऑटोक्रेटिक शासन माने से ही करती तो सेम सिचुएशन अगेन स्टार्टेड आफ्टर द 1815 एंड मोस्ट ऑफ द मोनार्की मोस्ट ऑफ द स्टेट पावर दे इम्पोज सेंसरशिप ओके कौन कर दिया गला ना सेंसरशिप लागू कर दिया गला सेंसरशिप मीन्स आमर राइट टू स्पीक राइट टू एक्सप्रेशन हाथरू गला कौन ना न्यूज़पेपर बुक प्लेस सॉन्ग्स कौन सी भी गोटे पब्लिक मीडियम माध्यम रे आमे ना आमर लिबर्टी ना फ्रीडम बा किछि भी आमे ओके रिवोल्यूशनरी आइडियाज आमे स्प्रेड करि परिबा नाही सेंसरशिप लागू कर दिया गला ओके कोन लागू कर दिला ना ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर बा आमे कहि परिबा मोनार्क सो किंतु हेला कौन मना नुह कंजर्वेटिव ऑर्डर बहुत स्ट्रिक्ट थिले कंजर्वेटिव ऑर्डर कौन करथिले ना रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को सप्रेस कर दउथले बट स्टिल ओके जो फ्रेंच रिवोल्यूशन रे जो आमे स्वाद जाखी ओके फ्रेंच रिवोल्यूशन समय रे जो फ्रीडम बा जो लिबर्टी रो जो स्वाद जाखी रिवोल्यूशनरीज से कौन से माने भूली पारथिले दैट्स व्हाई द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टिल कंटिन्यूड टू इंस्पायर द लिबरल्स ओके लिबरल्स माना को स्टिल से स्वाद तांको कौन करथला ना इंस्पिरेशन दोथला एंड दैट्स व्हाई one of the major issues taken off by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of the press कौन कहा होची ए लिबरल्स माने साइलेंट नथिले से स्वाद बा फ्रेंच रिवोल्यूशन समय रे जो एक्सपोजर टी से पाइथले रिगार्डिंग लिबर्टी एंड फ्रीडम से को स्टिल इंस्पायर करथला एंड गोटे एग्जांपल दिया जायछि जदि लिबरल नेशनलिस्ट माने काहा को सबुठो अधिका अपोज करथले बा कंजर्वेटिव्स ऑर्डर मानकर को डिसीजन को जदि सबुठो अधिका अपोज करथले देन दैट वाज द फ्रीडम ऑफ द प्रेस रो फ्रीडम ऊपर जो लगाम लगे दिया जाइतला थ्रू द सेंसरशिप ताकू बहुत अपोज करथले को माने ना लिबरल नेशनलिस्ट ओके तो एठो हम गोटे आइडिया पाई गले दैट इज 1815 रे जो न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर टी री इंट्रोड्यूस करा गला से माने थिले कौन कंप्लीटली ऑटोक्रेटिक ओके से माने सेंसरशिप लगे देइथले कहा ऊपर ना दैट इज ऑन फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस बा जो सेंसरशिप लगे दिया गला बा जो रिवोल्यूशनरी आइडियाज को स्प्रेड करबा पई दिया गला नाही एठो हमें जानले कौन रिवोल्यूशनरीज माने साइलेंट रहितले नो से माने भी साइलेंट नथिले से माने भी किछि इश्यूज नै कि लिबरल नेशनलिस्ट माने वॉइस पे रेज करूथिले ओके ये थिला सिचुएशन आफ्टर 1815 ओके नाउ लेट्स सी द रिवोल्यूशनरीज what we'll discuss in this part okay that is as we have discussed now कि during the years following 1815 a fear of repression drove many liberal nationalists underground okay हमें just देखिले 1815 onwards जो new conservative order आसी थिला because of their repressive activities okay जेहेतु से माने रिवोल्यूशनरी आइडियाज को सप्रेस करिया पई चाहुथले ओके बहुत इल ट्रीट करथले लिबरल नेशनलिस्ट मानको तो लिबरल नेशनलिस्ट माने कोन हे गले ना अंडरग्राउंड सो व्हाट डू यू मीन बाय अंडरग्राउंड अर्थ लिबरल नेशनलिस्ट माने आ ओपनली नुह से माने सीक्रेटली लिबरल आइडियाज को कोन करबा लागिले ना सोसाइटी रे स्प्रेड करबा को लागिले बा हम एमती बुझि परिबा मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड इट मींस दे वर
सिक्रेटली आइडियाज को स्प्रेड कले बा सेमानक रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को सिक्रेटली चलेले ओके सो सीक्रेट सोसाइटीज वेर sprang off in many European states to train the revolutionaries and spread the ideas तो 1815 onwards secret societies सब फॉर्म हेबारे लगिला यूरोप रे ओके कौन पे मेन ऑब्जेक्टिव कौन थिला ना टू स्प्रेड द रिवोल्यूशनरी आइडियाज ओके एंड ड्यूरिंग दैट टाइम टू बी रिवोल्यूशनरी से समय रे रिवोल्यूशनरी हेबार अर्थ यह थिला कि आमे शपथ नेबा आमे कमिटमेंट करिबा कि आमे ओपनली ओपोज करिबा काहा को ना मोनार्चिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट okay that had been established after the Vienna Congress and fight for the liberty and freedom हाँ ना नहीं obviously yes 1815 पर रिवोल्यूशनरी हेबा अर्थ एते रिप्रेसिव एक्टिविटी सत्वे भी जदि आमे रिवोल्यूशनरी हेबा पई राजी अच्छे ताले हमको शपथ करिवार अछि हमको कमिटमेंट करिवार अछि कोन ना आमे वर्तमान रो जो मोनार्चिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ओपनली आमे कोन करिबा चैलेंज करिबा जहा को कि वियना कांग्रेस अंडर एस्टैब्लिश कराइतले एंड विथ दैट आमे फाइट करिबा का पई फॉर द लिबर्टी एंड freedom. So most of the revolutionaries also saw the creation of nation state as a necessary part of this struggle for freedom. And से समय revolutionaries माने एभली स्वप्न देखथिले जे नेशन स्टेट फॉर्मेशन करिबा ही तांकर स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम रा गोटे स्वप्न बा गोटे पार्ट ओके तो आर गोटे एग्जांपल नेबा ओके कौन सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म हेतला केमिति लिबरल नेशनलिस्ट माने अंडरग्राउंड बा में कहि परिया सीक्रेटली वर्क करथले one such example we will discuss now and that is the activities of Giuseppe Mazzini okay who was Giuseppe Mazzini he was a Italian revolutionary okay just like the Giuseppe Mazzini many revolutionaries were there but I am ଗୋଟେ example नेबा and देखिबा जे केमिति revolutionary activities secretly work करथला during the period of 1815 onwards we can say so let's say Giuseppe Mazzini he was a Italian revolutionary born in Genoa 1807 रे Genoa रे born करथले and से कार्बोनारी बोली गोटे सीक्रेट सोसाइटीज रो भी मेंबर रहिथिले ओके and at the age of 24 ओके तांको देशरो विताड़ित करा जाइथिला ओके 1831 रे काहेकि ना लिगुरिया रे से गोटे रिवोल्यूशन को कौन करथिले ऑर्गेनाइज करथिले बा रिवोल्यूशन गोटे आरंभ करथिले लिगुरिया रे बा तांकर एक्टिव रोल थिला लिगुरिया रे गोटे रिवोल्यूशन रे at the age of 24 and that's why he was sent into exile in 1831 later सी दुईटी अंडरग्राउंड सोसाइटीज निजर दुईटी अंडरग्राउंड सोसाइटीज भी परवर्ती समय रे से स्टार्ट करछने वन वाज यंग इटाली इन मार्सिलिस ओके फ्रांस रे थिला यंग इटाली अनदर वन इज यंग यूरोप इन बर्न ओके परवर्ती समय रे दुईटी सीक्रेट सोसाइटीज ओके द कार्बोनारी तांकर निजर ओन सीक्रेट सोसाइटी नथिला से जॉइन करथिले बट लेटर ही हिमसेल्फ स्टार्टेड टू secret societies one was young Italy and second one is young Europe okay Mazzini believed that Mazzini को विश्वास थिला that is God had intended nations to be the natural units of mankind so Italy could not continue to be a patchwork of small states of kingdom this is a very powerful line okay Mazzini कोथरे विश्वास रखुतले Mazzini कहतले हा जे भगवान कर भी यह उद्देश्य ओके भगवान कर भी यह इच्छा जे नेशन जी कि गोटे नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड गोटे व्यक्ति जेते बेले जन्म लाभ करे सी कोनोसी ना कोनोसी गोटे नेशन को कौन करे बा कोनोसी ना कोनोसी गोटे स्टेट बा कोनोसी गोटे कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं से कौन लाभ करे जन्म लाभ करे तो से जो कलेक्टिव आइडेंटिटी बा से जो नेशन को बिलोंग्स करूची सी होची तारो नेचुरल यूनिट एंड से यूनिट रु ताको अलगा करिवार अधिकार काहार भी नहीं ए विश्वास काहार बा ए इच्छा काहार ना भगवान कर भी तो एथिरे से विश्वास रखथिले के ना गिउसेप्पे माजिनी से कहते कि गॉड हाड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड प्रत्येक व्यक्तिंकर नेचुरल यूनिट बा तांकर कलेक्टिव आइडेंटिटी ही होची तांकर नेशनल आइडेंटिटी ओके बा जो नेशन रे से माने जन्म लाभ करचंती ओके नेचुरली से माने से यूनिट को कौन करचंती ना बिलोंग्स करचंती एंड केही भी तांको से यूनिट रो अलगा करि परिबे नाही ओके ये इच्छाटी कहार ना स्वयं भगवान करे भी एही इच्छा
ए कथारे विश्वास रखुले गिउसेप्पे माजिनी एंड दैट्स व्हाई से कहते इटाली एभली बहुत गुड़ा स्टेट ऑफ पेचवर्क भावे रही पारिबो नाही एंड इट हैड टू बी फोर्स इनटू ए सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विदिन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस सेथिबे से कहते इटाली एभली पेचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स बा किंगडम्स ही रहिबनी बा इटाली रो जो पार्ट गुड़िक अदर किंगडम्स मान द्वारा कौन कराई ना ऑक्युपाई करके रखा जाइए से सबू फ्रीडम पाइबा दरकार एंड सबू इटालियन स्पीकिंग प्रिंसिपालिटीज मान को लेकिन गोटे इटाली आज ए नेशन एस्टाब्लिश हवा निहाती दरकार ओके एथिरे विश्वास रखुले कि ना गिउसेप्पे माजिनी सो द यूनिफिकेशन ऑफ इटाली एलोन कुड बी द बेसिस ऑफ द इटालियन लिबर्टी ही बिलीव दैट कि इटालियन माने लिबर्टी पाइले केतेबेले कहा जीवो ना जेतेबेले यूनिफिकेशन हबो कहार ना इटाली रो ओके सो फॉलोइंग हिज मॉडल secret societies were also set off in German, France, Switzerland and Poland okay later just like the secret societies of Giuseppe Mazzini many other secret societies were formed across the Europe okay and Mazzini relentless opposition to the monarchy and his vision of democratic republic frightened the conservative Mazzini गरो जो चेष्टा थिला रिलेंटलेस ऑपोजिशन मीन्स जो से कंटिन्यूअसली मोनार्की को जो भली ओपोज करथले बा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एस्टाब्लिश करे पे तांकर जो चेष्टा थिला बा जो तांकर विजन थिला सी जो न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर एस्टाब्लिश कराइतला आफ्टर 1815 सेमानक मन रे गोटे भय सृष्टि करथला बा हम कहि पारे यूरोपियन पावर्स मानक भितरे गोटे भय सृष्टि करथला कोन भय सृष्टि करथला ना माजिनी कर जो कंटिन्यूअस एफर्ट ओके एंड दैट्स व्हाई ड्यूक मैट्रिन्स ऑफ द ऑस्ट्रिया रो जो ड्यूक मैट्रिन्स थिले ओके ऑस्ट्रियन चांसलर सी मैजिनी ऊपर गोटे स्टेटमेंट देइछनी एंड दैट स्टेटमेंट वाज ही वाज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर मीन्स कंजर्वेटिव ऑर्डर मैट्रिन्स कहते आम सोशल ऑर्डर दैट इज कंजर्वेटिव सोशल ऑर्डर जदि सबुठ किए डेंजरस एनिमी then he was Mazzini okay and from that you can imagine how relentlessly okay Mazzini work करथबे so this is all about what na this is all about Italian revolutionary Giuseppe Mazzini so आजिरो डिस्कशन रे आजिरो सेशन रे कौन डिस्कशन कले आम डिस्कशन कले फ्रॉम 1815 ऑनवर्ड्स न्यू कंजर्वेटिज्म बा न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर केमती एस्टाब्लिश करा जायतला आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट एंड न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर्स माने कौथिरे बिलीफ रखुले ना से माने कंप्लीटली ऑटोक्रेटिक थिले ओके से माने सप्रेस करथले रिवोल्यूशनरी आइडियाज को बट जेतेबेले से माने सप्रेस करथले कोन रिवोल्यूशनरीज माने साइलेंट बसथले कि नो रिवोल्यूशनरीज माने भी साइलेंट बसनथले से माने सीक्रेटली से मानकर रिवोल्यूशनरी आइडियाज को स्प्रेड करिवारे लागिले एंड 1815 ऑनवर्ड्स कौन होता ना धीरे धीरे आइडियाज गुड़िक नेशनलिज्म आइडिया आम कह रिवोल्यूशनरी आइडियाज गुड़िक सीक्रेटली स्प्रेड होता ऑल ओवर द यूरोप ओके सो इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस फ्रॉम 1830 ऑनवर्ड्स ओके आम जहाँ भी आज डिस्कस कले ये था 1815 टू 1830 अप टू 1830 सीक्रेटली सब एक्टिविटीज चली बट आफ्टर 1830 what happened that we will discuss in the next class okay so I hope कि आज भिडियोटी आपण मानक भल लगी कॉन्सेप्ट बहुत भल भाव बुझे जदि भिडियोटी आपन को हेल्पफुल लगी जदि ये सीरीजटी आपन को हेल्पफुल लगुच निहाती टाइम निहाती प्लेलिस्ट को फ्रेंड्स मान शेयर करूँ ओके लाइक एंड कमेंट करने जमार भूलु नहीं ओके चैनल टी सब्सक्राइब भी कर दिंतु सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।